Good evening, friends. Today our topic is epidemiology. What is epidemiology? Its application, scope of epidemiology, types of epidemiology, and some basic terms. So, let's get started. What is epidemiology? Epidemiology is a Greek word that is composed of three words. Epi means upon, demos means people, logos means study. So, it is the study of frequency, distribution, determinant of disease and other health related condition in a human population. So, what do we mean about frequency, distribution and determinants of the disease and other health related condition in a human population? So, first is the frequency, means the number of time a disease occurs is known as a frequency. So, it is the basically quantitative science, means how many times an infection occurs. Frequency, the number of times a disease occurs. Now, the second is distribution. Distribution means distribution of event by person, place and time. It's mean when, who, where and when. So इन्फेक्शन किसे हुआ, कब हुआ और किस टाइम पे हुआ, मतलब कहाँ किसे और कब हुआ. So it is called distribution. And the third term was used in that definition is determinant. Determinant mean the factors or the presence and absence of which affects the occurrence and level of an event. इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट्स मीन्स कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से डिजीज़ हुई है. फॉर सपोज अगर हम लोग ओबेसिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, LDL जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स वो ज़्यादा हो जाते हैं. जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो कौन सी डिजीज़ होगी, ओबेसिटी. सो इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर. और एब्सेंस हमें पता है कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है. तो इट इज़ द डिटरमिनेंट्स मीन्स द फैक्टर विच प्रेजेंट्स एंड एब्सेंस may contribute to the disease. So we have done with the frequency, distribution and determinants. And the fourth term that was used on the definition of epidemiology is diseases and other health related events. So what do we mean about this? Epidemiology is not only the study of disease. The epidemiology focus is not only the patient, it focuses on the population. It does not focus on only diseases, it focuses on other health related problems as well. So the fourth, I hope it's clear to you. Now the fifth one, word, human population. Human population epidemiology diagnoses and treat communities and population, not only the patient and diseases. Now, the second definition of epidemiology is that epidemiology is the study of public health. So, what do we mean about public health? Public health, basically it is the science and art of preventing disease. एक तो disease को prevent करना है, prolonging life, promoting health and efficiency. इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि हम लोग डिजीज़ को प्रिवेंट करेंगे. हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू द क्योर. अगर प्रिवेंशन होगी तो डिजीज़ होगी नहीं, तो क्योर करना पड़ेगा नहीं. और इसका जो सेकंड है प्रमोट, उससे हमारी जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी. प्रमोटिंग हेल्थ अच्छी रहेगी और हम लोग एफिशिएंटली काम करेंगे. उसके बाद है हेल्थ. व्हाट डू वी मीन अबाउट हेल्थ? A state of complete physical, mental, social well-being and not only the absence of disease. अगर हम कहें से डिजीज़ नहीं है तो ये हेल्दी है, नो. मेंटली रिलैक्स्ड है, सोशली अटैच्ड है, सोशली सही है, तो उसे हम लोग कहेंगे हेल्दी.
अब हम लोग कोई सोशली डिटैच होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, कुछ हुआ है क्या, तो वो हेल्दी नहीं हुआ। तो हेल्दी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप फिजिकली फिट हो, नो, इसका मतलब है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली आप वेल हो। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, सबसे बड़ी एप्लीकेशन इसकी ये है कि ये प्रिवेंट करेगा डिजीज़ को, प्रमोट करेगा हेल्थ को। एप्लीकेशन, एपिडेमियोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस, मीन्स इट हैज़ द एप्लीकेशंस। द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। द सेकेंड टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो इसका स्कोप क्या है? वैसे हम अगर ओरिजिनली देखें तो एपिडेमियोलॉजी वॉज कंसर्न विद द एपिडेमिक्स, देन इट कम्स टू द एंडेमिक, और नाउ रिसेंटली इट डील्स विद द disease and all health related events. So recently epidemiology is applied to all disease and health related events. मतलब जो पहले पहले एपिडेमियोलॉजी थी ना, वो सिर्फ एपिडेमिक्स पे काम करती थी, मतलब कोई आउटब्रेक आया किसी डिजीज़ का तो उस पे काम करती थी। फिर जैसे ही आगे चल के फिर वो एंडेमिक पे काम करने लगी। अब वो किस चीज़ पे काम करती है? डिजीज़ पे और जो भी अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स हैं उस पे। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी की कौन सी टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, टू मेजर कैटेगरीज ऑफ एपिडेमियोलॉजी आर डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी एंड एनालिटिकल। सो व्हाट डू वी मीन अबाउट डिस्क्रिप्टिव? Defines frequency and distribution of disease and other health related events. Frequency means how many times एक disease होती है, distribution means किससे, कब और कहाँ हुई, और दूसरी इसको हम लोग बोलते हैं descriptive epidemiology. And what is the analytical epidemiology? It analyzes determinant of health problem. इसमें डिटरमिनेंट्स में क्या होगा, कौन से फैक्टर की एब्सेंस और प्रेजेंस की वजह से डिजीज़ होती है। नाउ द नेक्स्ट इज एटियोलॉजी। व्हाट डू वी मीन अबाउट एटियोलॉजी? द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द अकरेंस ऑफ डिजीज़। मतलब वो सारे फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व हों किसी डिजीज़ कंडीशन के लिए, उसे हम लोग कहेंगे एटियोलॉजी। अब एटियोलॉजी में 3 फैक्टर्स आ जाते हैं। एक तो होस्ट चाहिए हमें जिससे इन्फेक्शन होगा, एक तो एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट होगा वैसा तो फिर इन्फेक्शन होगा, और तीसरा है होस्ट। एक होस्ट, एजेंट एंड तीसरा है एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल विंटर सीजन में फ्लू, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो फेवरेबल इन्वायरनमेंट होता है फॉर दैट एजेंट, और हम होस्ट भी होते हैं। तो फिर क्या होता है, उस सीजनल कभी कोल्ड हो जाता है एंड इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल। द नेक्स्ट इज़ बेसिक टर्म्स। तो हम लोग यहाँ 4 टर्म्स देखेंगे, स्पोरेडिक डिजीज़, एपिडेमिक, पेंडेमिक एंड एंडेमिक। सो लेट्स start with sporadic disease. So what do we mean about sporadic disease? A disease found occasionally in a region with cases occur mainly in isolation from each other. So इसका मतलब ये होता है वो डिजीज़ जो ओकेजनली किसी रीजन में हो, मतलब ये प्रेजेंट नहीं होगी, ओकेजनली, ये कांस्टेंट नहीं है, ओकेजनली किसी को हो गई, जैसे रेबीज़ एंड टेटनस। सडनली एक रीजन में एक बंदा, दूसरे रीजन में दूसरा बंदा उसे होती है, मतलब ओकेजनली, ये परमानेंट नहीं होती। तो उसे हम लोग कहते हैं स्पोरेडिक डिजीज़। और अब आते हैं एंडेमिक। एंडेमिक का क्या मतलब होता है? एंडेमिक, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, एन मीन्स इन एंड डेमोस मीन्स पीपल। नाउ a disease that is present at a constant level within a society or country. किसी भी कंट्री में जो डिजीज़ परमानेंटली या कॉन्स्टेंटली हो वहाँ पे, तो उसे हम लोग कहते हैं एंडेमिक। एग्जाम्पल, मलेरिया इन ब्राज़ील। ये पूरे यूएसए में नहीं होता, जस्ट एक रीजन है यूएसए का, उसमें होगा।
तो वो परमानेंट मतलब किसी कंट्री में हम लोग कहते हैं ना ये ज़्यादा डिजीज़ है, तो वो उसका एंडेमिक होता है। अब एंडेमिक के बाद है एपिडेमिक। एपिडेमिक में क्या होगा? एपिडेमिक, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. एपी मीन्स अपॉन एंड डेमोस मीन्स पीपल. It describes a situation where a disease is spreading rapidly to large number of people in a given population. मीन अगर एपिडेमिक फैलता है, स्प्रेड होता है, मतलब हमें पता चला कि इस रीजन में मतलब इन्फ्लुएंजा ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसका एपिडेमिक होगा, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल उससे अफेक्टेड हैं, तो उसे हम लोग एपिडेमिक कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा एंड द कॉलेरा. अब एपिडेमिक हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अब किसी कंट्री के एक रीजन में इन्फ्लुएंजा हुआ, सडनली आउटब्रेक हुआ कि ये फैल रहा है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल उससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो फिर उस कंट्री में ये एपिडेमिक होगा, फिर वो उसकी नियर बाय कंट्रीज़ में भी लगना शुरू हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे एपिडेमिक. अब जो थर्ड टर्म है उसे हम लोग कहते हैं पैंडेमिक. मतलब अगर एपिडेमिक ज़्यादा फैल जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड तो हम उसे पैंडेमिक कहेंगे. अब पैंडेमिक में आते हैं. इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. पेन मीन्स ऑल एंड डेमोस मीन्स पीपल. This term describes the rapid spread of disease all over the world. It is an epidemic that spread over multiple countries. As I earlier said, it is an epidemic जो कि spread होगा multiple countries में, तो उसे हम लोग pandemic कहेंगे. For example, corona. So it's enough for today.